ورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرف حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یقیناً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے شمار لوگوں نے اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کیے ہیں، خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن قربان جاؤ، بریلی کے امام نے، بریلی کے مجدد نے امام عشق و محبت کا جو انداز ہے وہ بہت نرالا ہے، بہت انوکھا ہے، بہت اچھوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی شان میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف ترے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف ترے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، سرکار غوث اعظم کی شان اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے، آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ سرکار غوث اعظم کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تو سرکار غوث اعظم کا کرم ہے کہ ہم جیسوں سے اپنی جیسوں سے ان کی شان جو بیان ہوتی ہے تو ان کی شان نہیں بڑھتی، بلکہ ہمیں غوث اعظم کا فیضان نصیب ہوتا ہے، ہمارے قسمت کے دریچے کھل جاتے ہیں غوث اعظم کے بیان اور ان کی شان بیان کرنے سے ہمارا نصیبہ جگمگا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کما حق ہو، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا تمام گوشوں پر گفتگو کرنے کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے اور بہت لمبا وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں رکھوں۔ شرط یہ ہے کہ ان باتوں پر آپ عمل کیجئے گا، ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے گا، ورنہ آج ہم جلسے تو کر لیتے ہیں، کبھی سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہم سیرت اولیاء پر جلسہ کرتے ہیں، اولیاء کی سیرت پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اسے پڑھنا اور جاننا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، غوث اعظم کے نام پر جلسہ کیے ہو، شرط یہ ہے کہ اگر غوث اعظم کے دیوانے ہو، غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، غوث اعظم کے ماننے والے ہو، تو سنو، غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، غوث اعظم کے طریقے پر چلنا پڑے گا، غوث اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ غوث اعظم کے طریقے پر چلتے ہو، غوث اعظم کی سیرت پر عمل ہے آپ کا، غوث اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر آپ نے زندگی گزارنا شروع کیا ہے، تب تو آپ بیٹھو ہیں رسیہ میں، لیکن آپ کے ایک ایک چیز پر سرکار غوث اعظم کی نگاہ کرم ہے، آپ رسیہ
کی سرزمین پہ بیٹھ کر غوث اعظم کا نعرہ لگاؤ گے یقیناً وہ گونج بغداد کی سرزمین پہ سنائی دے گی۔ اور اگر آپ غوث اعظم کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، لاکھ نعرے لگاتے رہو، لاکھ دعویٰ کرتے رہو کہ میں غوث اعظم کا چاہنے والا ہوں، لیکن آپ کا نام غوث اعظم کے عاشقوں کے لسٹ میں نہیں ہوگا، غوث اعظم کے چاہنے والوں میں نہیں ہوگا۔ غوث اعظم کا سچا چاہنے والا وہ ہوگا جو غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرے، غوث اعظم کا پکا ماننے والا وہ ہوگا جو غوث اعظم کے طریقے پر چلے، غوث اعظم کا سچا عاشق وہ ہوگا جو غوث اعظم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارے۔ حضرات محترم، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے گاؤں اور قریب میں آرکے اسٹار نام کی خرافات آئی ہوئی ہے۔ کئی دنوں سے آپ کے یہاں وہ دوزخی اور جہنمی کام ہو رہا ہے۔ مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ رسیہ اب وہ گاؤں نہیں ہے، بلکہ رسیہ اور قرب و جوار کے گاؤں کا مقام وہ مقام ہے۔ اے رسیہ والو، تم اپنے آپ کو چاہے جو سمجھتے ہو، لیکن پورا علاقہ تمہیں دوسرے نظریے سے دیکھ رہا ہے، پورا علاقہ تمہیں اس وقت اپنا آئیڈیل مان رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے گاؤں میں، تمہارے اس آبادی میں، تمہارے درمیان آل رسول حضور سید بابو حضور قدس اللہ العالی کا قیام ہوا کرتا ہے، بابو حضور کی آمدیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت کی آمد ہوتی ہے، حضور عالی بابو حضور اور دیگر اولیاء کرام اور بزرگان دین کا فیضان سے تم سب مالا مال ہو۔ ذرا انصاف کے ساتھ بتاؤ، قسم خدا کی پورے علاقے میں بابو حضور کے تعلق سے آپ کا ایک الگ مقام ہے، آپ کی ایک نمایاں پہچان ہے یقیناً، بلکہ علاقے میں اگر دربھنگا کے بعد دوسری خانقاہ ہونے کی حیثیت کسی گاؤں کو حاصل ہے تو وہ آپ کا رسیہ ہے، جہاں پر بابو حضور سب سے زیادہ لمبا قیام فرماتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ وقت دیتے ہیں، لیکن آپ کس قدر نافرمان ہے، آپ کس قدر اولیاء کرام، بلکہ بابو حضور جیسی شخصیت کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر آپ وعدہ کرتے ہو کہ ہم گناہوں سے باز آ گئے ہیں، بابو حضور کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، ایک طرف بابو حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر آپ دنیاوی خرافات سے دور ہونے کا وعدہ کرتے ہو، دوسری طرف آپ اسی بابو حضور کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گاؤں میں کھیل تماشا اور جہنمی کام کرتے اور کرواتے نظر آتے ہو۔ یقیناً اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آج بابو حضور رسیہ میں نہیں ہے اس لیے ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، بابو حضور کے علم میں نہیں ہوگا۔ قسم خدا کی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی چاہے جہاں بھی ہو، پوری دنیا ان کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی جیسی ہے۔ یقیناً بابو حضور چاہے علاقے میں ہو، بابو حضور دربھنگا میں ہو، بابو حضور کہیں بھی ہو، اللہ کا ولی کہیں بھی ہو، یقیناً اگر تم نے ان سے اپنا ناطہ جوڑا ہے تو تمہاری صبح و شام، تمہاری ہر حرکت کی خبر اللہ کے اس ولی کو ہوتی ہے۔ اس لیے اگر دل سے بابو حضور سے محبت کرتے ہو، حضور عالی سے محبت کرتے ہو، تو آج یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد رسیہ میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو بابو حضور کو ناپسند ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، پیغام غوث الورا کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ صرف وہ کام کرو جس سے بابو حضور خوش ہو، وہ کام کرو جس سے حضور عالی خوش ہو، وہ کام کرو جس سے سرکار غریب نواز راضی ہو، وہ کام کرو جس سے بغداد کا غوث اعظم راضی ہو۔ حضرات محترم، آرکے اسٹار میں ناچ اور گانا دیکھنے کے بعد کل جب بابو حضور مدرسے میں آئیں گے تو اسی وجود کے ساتھ تم بابو حضور کا ہاتھ چومو گے، شرم آنی چاہیے۔ قسم خدا کی، ایک طرف
طرف گندا کام کر کے جا کر بابو حضور کا ہاتھ چوم کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ارے یہ تو اللہ والوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے جو تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کرتا ہے، ورنہ ان اللہ والوں کو معلوم ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ یہ لوگوں کی نگاہوں سے تمہارے گناہ کو چھپانا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے اے رسیا کے لوگوں، قسم خدا کی تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے گاؤں اور تم لوگوں کو بابو حضور تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی لاج رکھ لو، اس محبت کا حق ادا کرو، اور وہ اس طرح ہوگا کہ تم گناہوں سے بچو، غلط جگہوں سے بچو، غلط چیزوں کو اپنے یہاں جگہ مت دو۔ قسم خدا کی اگر تم نے جملہ برائیوں سے توبہ کر کے غلط چیزوں کو نظر انداز کر کے اگر تم بابو حضور سے اور اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں یا کسی بھی سلسلے کے پیر صاحب سے اپنی عقیدت وابستہ کر لیا تو قسم خدا کی آج جو مصیبت ہے ہم مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے وہ آنے واحد میں دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یقیناً کسی کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں تم بھی اس کو پسند کرو، اور وہ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تم بھی ان کو ناپسند کرو۔ یقیناً بابو حضور برائیوں کو ناپسند کرتے ہیں تو تم اگر بابو حضور سے محبت کرتے ہو تو تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم بھی ان برائیوں سے نفرت کرو تاکہ بابو حضور تم سے راضی ہو جائے، اور جب بابو حضور راضی ہوں گے تو یقیناً اجمیر کا غریب نواز بھی راضی ہوگا، جب غریب نواز راضی ہوگا تو بغداد کا غوث اعظم تم سے راضی ہوگا، اور جب غوث اعظم راضی ہوں گے تو مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اور جب مدینے والے آقا راضی ہوں گے تو پھر خدا تم سے راضی ہوگا، اور جب خدا تم سے راضی ہوگا تو پھر جنت تمہاری ہوگی۔ حضرات محترم، اس لیے آپ وہ کام کیجئے، صرف یہاں بیٹھ کر غوث اعظم کا نعرہ لگا دینا کمال نہیں ہے، غوث اعظم کی مجلس سجا لینا یہ کمال نہیں ہے، علماء کو بلا لینا کمال نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، جن لوگوں نے آگے بڑھ کر یا جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں غوث اعظم کی محبت میں وعدہ کرو کہ سرکار غوث اعظم کی محبت میں تم نے جلسہ سجایا ہے تو کل صبح سے پھر تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سرکار غوث اعظم کے مشن کے خلاف ہو، سرکار غوث اعظم کے طریقے کے خلاف ہو، سرکار غوث اعظم کے سیرت کے خلاف ہو۔ حضرات محترم، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور رکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ کی پہچان الگ ہے، دوسرے گاؤں کے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، دوسرے گاؤں کے لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کہ رسیا میں ایسا ہوا، گنجریا میں ایسا ہوا، اسی کو دیکھ کر دوسری جگہ کے لوگ اپنے دینی معاملات پہ عمل کرتے ہیں۔ اتنا بڑا دارالفتاء آپ کے یہاں قائم ہے، قسم خدا کی اس دارالفتاء کو رسوا مت کیجئے، اس عظیم ادارے کو رسوا مت کیجئے، اور اس عظیم ادارے کی سرپرستی کرنے والے اولاد رسول، اولاد علی، اولاد حسن و حسین، اولاد فاطمہ، حضرت سیدنا شمس اللہ جان المعروف بابو حضور کو رسوا ہونے سے بچائیے۔ حضرات محترم، آج اس غوث اعظم کے نام کی محفل ہے، سرکار غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ بڑے چند لمحوں میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ سماعت کیجئے، اس لیے کہ لمبی چوڑی تقریریں سننا صرف کمال نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا سنیے لیکن اس پر عمل کیجئے، عمل کرنا یہ کمال ہے۔ گنجریا رسیا یا علاقے میں آئے دن تقریریں ہوتی رہتی ہیں، حضرات محترم یقیناً تقریریں ہوتی رہتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہو،
एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना ये कमाल नहीं है, बल्कि दोनों कानों से सुनकर दिल में जगह देकर उस पर अमल करके शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना ये कमाल है। आओ सरकार गौसे आजम का कमाल देखिए। मेरे सरकार गौसे आजम का बचपन है, अल्लाह अकबर, सिर्फ 5 साल की उम्र है सरकार गौसे आजम की। अपने घर के दरवाजे पे बैठे हैं। आपके 5 साल के बच्चे को अपने तसव्वुर और ज़हन पे रखिए और सरकार गौसे आजम की उम्र को देखिए। सिर्फ 5 साल की उम्र है, अपने घर के दरवाजे पे सरकार गौसे आजम बैठे हैं। एक फकीर गुजरता है, फकीर की निगाह सरकार गौसे आजम पे पड़ी। फकीर ने बच्चे को यानी गौसे आजम को देखकर कहा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गौसे आजम जो सिर्फ 5 साल के थे, आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर रुक जाता है, कहता ऐ बच्चा, मैंने तो एक बार सलाम किया है, तूने एक सलाम का 2 जवाब क्यों दिया? हजरत सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ऐ फकीर, मैंने एक नहीं बल्कि 2 सलामों का जवाब दिया है। फकीर कहता है ऐ बच्चा, मैंने तो एक ही बार सलाम किया है। गौसे आजम कहते हैं कि मैंने 2 सलामों का जवाब दिया है। फकीर ने कहा एक बार सलाम किया है, दोनों में तकरार होती है। सरकार गौसे आजम ने कहा ऐ फकीर, तुझे मालूम नहीं है कि तुमने कई बार सलाम किया है? कहा मैंने सलाम किया और मुझे मालूम नहीं है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ ऐ बच्चा, मैंने एक बार सलाम किया है, लेकिन गौसे आजम कहते हैं मैंने 2 सलामों का जवाब दिया है। फकीर कहता है मुझे समझाओ, बात मेरी समझ से बाहर है। सरकार गौसे आजम जो सिर्फ 5 साल की उम्र के थे, सरकार गौसे आजम ने फरमाया ऐ फकीर, आज से 5 साल पहले जब एक बार तू मेरे दरवाजे पे आया था, मेरे दरवाजे पे आके सलाम किया था, उस वक्त मेरे घर में कोई मर्द नहीं था जो तेरे सलाम का जवाब देता। उस वक्त मैं अपने माँ के पेट में था, अपनी माँ के पेट से मैंने तेरे सलाम को सुना भी था, तुझे देखा भी था और तुझे पहचान भी लिया था। ऐ फकीर, एक जवाब आज के सलाम का है, एक जवाब 5 साल के पहले के सलाम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, मशरक़े आला हज़रत, मशरक़े आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम कुर्बान जाओ कि मेरे गौस का मकाम इतना बुलंद बाला है, गौस का बचपन इतना निराला है, तो आपकी जवानी और आपकी उम्र का आखिर हिस्से का आलम क्या होगा। मेरे गौस 5 साल की उम्र में कहते हैं ऐ फकीर, एक सलाम का जवाब, एक जवाब आज के सलाम का है और एक जवाब 5 साल के पहले के सलाम का है। जब मैं अपने माँ के पेट में था, माँ के पेट से मैंने तेरे सलाम को सुना था, उसी सलाम का जवाब है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की उम्र 6 साल की है। नुज़हतुल ख़वातिर में ये रिवायत आती है कि गौसे आजम की उम्र सिर्फ 6 साल की है। अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम एक दिन अपनी माँ की बारगाह में ऐ नौजवानों, तुम कान खोल कर सुनना और अमल करना। अगर गौसे आजम से मोहब्बत है तो आज तेरी जिंदगी का नजरिया बदल जाना चाहिए, आज तेरी जिंदगी गुजारने के तरीके में तब्दीली आनी चाहिए। 6 साल की उम्र है। सरकार गौसे आजम अपनी माँ की बारगाह में हाथ जोड़कर खड़े हैं। कहा अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने कहा उम्मुल खैर फातिमा, माँ फरमाती है बेटा अब्दुल कादिर, तुमसे कौन सी गलती हुई है जो माफी मांग रहे हो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम फरमाते अम्मी जान मुझसे खता हुई है, एक गलती हुई है। आपकी माँ उम्मुल खैर फातिमा कहती
है कि बेटा अब्दुल कादिर, मैंने तो आज तक तुझे कोई गलती करते नहीं देखा, आखिर किस गलती की माफी चाह रहे हो? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अम्मी जान, आज से 6 साल पहले मैं आपके पेट में था और हमारे दरवाजे पे एक फकीर ने आवाज लगाई, घर में कोई नहीं था। आप दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, आपकी आंखें नीचे है, आपका कदम आगे बढ़ रहा है, हाथ ऊपर उठा हुआ है, दरवाजे की कुंडली और छिटकनी खोलने के लिए आपका हाथ आगे बढ़ रहा था। ऐ अम्मी जान, आपकी निगाहें कुंडली और छिटकली पे नहीं थी, बल्कि आपका हाथ ऊपर जा रहा था ताकि दरवाजा खोले, और आपकी निगाहें नीचे थी। ऐ अम्मी जान, मैंने आपके पेट के अंदर से देख लिया कि उस छिटकनी पे एक खतरनाक बिच्छू बैठा हुआ था। अगर आप हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजा खोलती तो वो बिच्छू आपको डंक मारता और आपको तकलीफ और दर्द महसूस होता। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी मुकद्दस माँ, आपको बिच्छू के डंक से बचाने के लिए मैंने अपना पंजा आपके पेट पे मारा ताकि आपके पेट में दर्द महसूस हुआ और आप छिटकिनी खोल न पाई। इस तरह से मैंने आपको बिच्छू से बचाने के लिए जो तकलीफ पेट के अंदर दिया था, आज उसी तकलीफ की माफी मांग रहा हूँ। दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पहुँचकर मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अरे मेरा गौस तो वो था जो माँ के पेट में रहकर माँ को तकलीफ से बचा रहा था, लेकिन आज का नौजवान बड़ा होकर शादी के बाद अपने माँ और बाप को तकलीफ देता हुआ नजर आता है, माँ बाप को सताता हुआ नजर आता है, माँ बाप को डांटता फटकारता नजर आता है, बीवी की बातों में आकर माँ बाप को गालियां देने वालों, ऐ नौजवानों, अगर गौस का मानने वाला हो तो आओ गौस के तरीके पर अमल करके आज वादा करो कि आज के बाद हम अपने माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अगर आज तुमने ये वादा कर लिया तो मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह तेरी ज़ादा की वजह से तेरी खताएं माफ करके तुम्हें गौस का सच्चा और पक्का दीवाना बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती फिरोज आलम साहब मिसबाही, जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पाचू रसिया, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, इसके मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, सरकार गौसे आज़म का सिर्फ बचपना अगर बयान किया जाए तो बहुत लंबी तकरीर और बहुत कई रातों की ज़रूरत है। सरकार गौसे आज़म का रिवायतों में आता है कि आपके बचपन का ज़माना है, आप बच्चों के साथ होते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाया, अल्लाह ने वो अज़मत गौसे आज़म को अता फरमाया कि गौसे आज़म ये बता दिया करते थे कि किसके यहाँ क्या पका है। अल्लाह अकबर। आपका नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो अपने वक्त के बहुत बड़े वली और कुतुबे ज़माना थे, बहुत बड़े अपने ज़माने के वली थे, जब गौसे आज़म की ये बातें बचपन की आपने देखा तो एक दिन आपके नाना को आप पर गुस्सा आता है। अल्लाह अकबर। मेरा गौस का बचपन का ज़माना है, नाना को नाती पर गुस्सा आता है। गौसे आज़म के नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई ने हाथ में असा और डंडा लिया, गौसे आज़म को डराने और मारने के लिए दौड़ाते हैं। गौसे आज़म अपने नाना के डंडे की मार से बचने के लिए आप दौड़ने लगते हैं, घर से बाहर, बाहर से आंगन, आंगन से दालान पे पहुंचते हैं। उसके बाद रास्ते में आते हैं, पीछे मुड़ कर देखा तो आपका नाना आपके पीछे पीछे डंडा लेके आ रहा है। गौसे आज़म आगे आगे दौड़ते चले जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते मेरा गौस जिनके बचपन का आलम था, अल्लाह अल्लाह, जीलान के कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। आपने पलट कर देखा तो नाना पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि पीछे पीछे कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो गौसे आज़म ने जीलान के कब्रिस्तान के मुर्दों से कहा, ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों, तुम
अपनी अपनी कब्रों में सोए हुए हो। मेरा नाना मुझे मारने के लिए दौड़ा रहा है, उठो और मुझे बचाओ। कब्रिस्तान के सारे मुर्दे अपनी कब्रों से उठकर गौसे आज़म को अपने घेरे में ले लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, अब कोई ये सवाल कर सकता है कि मारना जिलाना तो अल्लाह के कुदरत में है, अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन ऐ दोस्तों, अल्लाह जिसे ताकत अता कर दे, जिसे कुदरत अता कर दे, और वो अपने वलियों को, अंबिया और औलिया को अल्लाह ने वो ताकतें और तसर्रुफात अता फरमाया है। कसम खुदा की, किसी फारसी शायर ने कहा, गुफ्ताए ऊ गुफ्ताए गुफ्ताए ऊ गुफ्ता बुवत गुफ्ताए ऊ गुफ्ताए अल्लाह बुवत गर्चे अज़ हुल्क़ में अब्दुल्ला बुवत। हज़रात मोहतरम, उसका कहना हकीकत में अल्लाह का कहना है, अगरचे बात अब्दुल्ला के ज़बान से निकली है। कसम खुदा की, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदा इबादत और रियाजत और नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह उस बंदे का पैर हो जाता है जिससे वो बंदा चलता है, अल्लाह उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसका कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, अल्लाह उसकी आंखें हो जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसकी ज़बान हो जाता है जिससे वो बोलता है। मतलब ये है कि अल्लाह वो पैर वली का होता है लेकिन चलने की ताकत खुदा की होती है, हाथ वली का होता है, पकड़ने की ताकत खुदा की होती है, कान वली का होता है, सुनने की ताकत खुदा की होती है, आंखें वली की होती है, देखने की ताकत खुदा की होती है, ज़बान वली की होती है, उसमें कलाम खुदा का होता है। अगर गौस ने कहा ऐ मुर्दा जिंदा हो जा तो ज़बान गौसे आज़म की है, हकीकत में उसमें हुक्म खुदा ताला का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ज़बान खुदा की है, ज़बान गौसे आज़म की है, लेकिन कलाम खुदा का है, ज़बान गौसे आज़म की है, उसमें हुक्म परवरदिगारे आलम का है। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने अपने गौसे आज़म को इतने कमालात अता फरमाया। कसम खुदा की, सिर्फ आला हज़रत के जो अशार मैंने पढ़े, अगर उसी पर गुफ्तगू हो तो एक नहीं कई रातों की ज़रूरत है। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात मोहतरम, कुत्ते शेर की डर से भागते हैं लेकिन वलियों के डर का कुत्ते का आलम ये है कि ज़माने के शेर को भाव और दबाव और खतरे में नहीं लाते हैं। हजरत गौसे आज़म के ज़माने में एक बहुत मशहूर वली था जिनका नाम हजरत शेख अहमद इब्ने जाम रहमतुल्लाह अलैह था। अल्लाह का इतना बड़ा वली कि वो जिंदा शेर पे, जंगली शेर पे बैठ के चला करता था। अल्लाह अल्लाह, आज अगर इस्लामपुर सब डिवीज़न में कहीं एक शेर निकलने की बात आ जाए तो आप रात को या दिन को अपने घरों से निकलना बंद कर दोगे कि न जाने शेर कब आ जाए, पूरा ब्लॉक बंद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह वालों को अल्लाह ने वो पावर दिया कि साइकिल मोटरसाइकिल पे नहीं बल्कि जंगल के शेर पे चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल पुकार उठते हैं कि नज़ामे वज़्म की बदल जाए आने वाहिद में, नज़ामे वज़्म की बदल जाए आने वाहिद में। अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का, आ जाए दीवाना मोहम्मद का, अगर नबी का दीवाना जिद पे आता है तो शम्स तबरेज बनकर सूरज को हाथ में बुला लेता है। अगर नबी का दीवाना जिद पे आ जाता है तो बहलोल दाना बनकर मिट्टी के घर बनाकर जन्नत के भाव में बेच देता है। अगर नबी का दीवाना जिद पे आ जाता है तो अबू अली शाह कलंदर पानी की पीप डालकर बच्चा को माँ की कोख में पैदा कर देता है। जिद पे आ जाता है, अल्लाह अकबर, तो दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे सरमत का कटा हुआ
का सर आसमान की तरफ जाने लगता है। कसम खुदा की नज़ाम बज़्म की थी बदल जाए आने वाहिद में, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का, नबी का दीवाना जिद पे आता है तो दिन को रात, रात को दिन बना सकता है, नज़ाम कायनात बदल सकता है। यकीनन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने का वो वली जो शेर पे सवारी करता था और जिधर जिधर से गुजरता था उस खानकाह से कहता था, उन खानकाह के पीर साहब से कि शेख अहमद इब्ने जाम आया है, मेरे शेर के लिए एक गाय का इंतज़ाम कर दो। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा वली था, जिधर से गुजरता था वहाँ का वली एक गाय उनके शेर के लिए भेज देता था। घूमते घूमते जब अल्लाह का वली हजरत शेख अहमद जाम की गुजर बगदाद से होती है, गौसे आजम के दरवाज़ से होती है, अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम के शहर के किनारे पे शेख अहमद जाम रुकता है, अपने खादिम से कहता है जाओ बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी से कहो कि शेख अहमद जाम आया है, मेरे शेर के लिए गाय भेज दे। खादिम आता है, आने के बाद कहता है कि मेरा पीर आया है जो जिंदा शेर पे सवारी करता है, आप एक गाय का इंतजाम कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम के मुरीदीन बैठे थे, गौसे आजम के मुरीदों को गुस्सा आता है कि ये कौन है, गौसे आजम का मकाम नहीं समझता, मर्तबा नहीं समझता है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम ने खादिम से कहा जाओ एक गाय लेकर आओ और शेख अहमद जाम के शेर को दे दो ले जाकर। मुरीदीन ने कहा हुजूर वो तो आपके सामने बहुत छोटा है, उनका मकाम बहुत कम है, आप उनकी बात मत मानिए, आप अपनी गाय उनके शेर के लिए मत भेजिए। लेकिन सरकार गौसे आजम ने कहा शेर के लिए गाय ले जाओ। अल्लाह अकबर, आपके दर से खादिम गाय लेकर आगे बढ़ने लगा। वहीं गौसे आजम के दर पे, गौसे आजम के दरवाजे पे एक दुबला पतला कुत्ता रहता था जो बचा कुचा खाकर गुजर बसर करता था, बहुत पतला दुबला कुत्ता था। इधर गाय चलती है, उधर पीछे पीछे गौसे आजम के दर का कुत्ता चलने लगता है। अल्लाह अकबर, जब गाय शेख अहमद जाम के शेर के करीब पहुंचती है, उधर से शेर छलांग लगाता है, इधर गाय तक आना चाहता है, इधर से मेरे गौस के दर का दुबला पतला कुत्ता छलांग लगाता है। अभी शेर गाय तक नहीं पहुंचता कि मेरे गौस का कुत्ता छलांग लगाकर शेर तक पहुंचकर शेर के पंजे को फाड़कर जमीन पे डाल देता है। शेर तड़प अपनी जान दे देता है। बरेली का इमाम पुकार उठता है कि वो क्या कबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाना नहीं, ऐ गौस कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम रसूलुल्लाह, पैगाम रसूलुल्लाह, मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही, मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही, मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही, सरजमीन पाचुरसिया, सरजमीन पाचुरसिया, पाचुरसिया के नौजवान, पाचुरसिया के नौजवान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ऐ नौजवानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि यकीनन आज आपका खून तो अपने भाई के खिलाफ खूब खोलता है। आज अपनी जवानी अपने भाई के नाम पर, भाई के खिलाफ आप खूब इस्तेमाल करते हो। एक बालिश जगह के लिए तलवारें निकलती है, थोड़ी सी जमीन के लिए आपस में लाठियां निकलती है। लेकिन मुसलमानों, अगर दीन के लिए मर मिटने की बात आए तो कोई आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता है। दीन के लिए अपनी कुर्बानियां पेश करनी हो तो कोई आगे नहीं बढ़ता है। ऐ रसिया के मुसलमानों, ऐ पाचू रसिया के नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कसम खुदा की, मेरे गौस के दर के कुत्ता के सामने जमाने का शेर टिक नहीं सका। अगर वाकईतन तुम गौस के सच्चे और पक्के गुलाम
बन जाओ तो कसम खुदा की आज की जालिम ताकतों को तुम्हारे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं होगी। ये है कि तुम गौस का पक्का दीवाना बनकर तो दिखाओ। जब गौस का कुत्ता शेर पे भारी पड़ सकता है, तुम तो गौस के दीवाने हो, नबी की वो उम्मत हो, फिर तुम्हें कोई जालिम क्यों सता सकता है? कोई जालिम कैसे परेशान कर सकता है? आज जालिम इसलिए तुम्हें सता रहा है कि तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया है, तुम्हारा अमल शरीयत के खिलाफ हो रहा है। कसम खुदा की अगर तुमने शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया तो कल की तरह आज भी पूरी कायनात पर तुम्हारी हुकूमत हो। सुभान अल्लाह, बहुत इकबाल ने कहा आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हज़रात मोहतरम, बस एक आखिरी बात आप समाअत कीजिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि सारे अख्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया काबा देखने जाती है। दुनिया का हर इंसान ये तमन्ना करता है कि मैं मक्के में जाकर खाने काबा देखूं। अल्लाह अकबर। आपके गांव में भी हाजी लोग हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपया खर्च करके जमाने भर का एक जमाने तक उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं काबा देखूं। अल्लाह अकबर। आप काबा देखने जाते हो, हाफिज साहब जाएंगे, मुफ्ती साबिर साहब जाएंगे, हम जाएंगे। अल्लाह ने चाहा। हर इंसान की, हर मुसलमान की तमन्ना है, आलिम हो, हाफिज हो, आम आदमी हो, मुहद्दिस हो, वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सबको काबा जाना पड़ता है देखने के लिए। हजरत मोहतरम, चुनांचे हजरत अल्लाह का एक वली है, अल्लाह का एक मुकद्दस वली बल्ख की सरजमीन से जाता है। अल्लाह अकबर। और रिवायतों में आया है कि 23 साल की मुद्दत में पैदल चल के बल्ख से मक्का पहुंचता है। अल्लाह अकबर। पैदल मक्का जाता है हज करने के लिए, और कितने जमाने में पहुंचता है। अल्लाह का वली बल्ख से चला और पैदल चलते चलते 23 साल में मक्का पहुंचा। मक्का पहुंचने के बाद हर मंजिल पे नमाजें पढ़ते, नवाफिल पढ़ते, क़याम करते, रुकू सजदा करते करते आधी जिंदगी गुजार दिया। 23 साल के बाद जब मक्का पहुंचा तो मक्का पहुंचने के बाद देखा खाने काबा नहीं है। अल्लाह अकबर। रसिया का एक नौजवान यहाँ से चले आगरा में ताजमहल देखने के लिए 2-3 हजार 10-20 हजार खर्च करने के बाद जब आगरा में जाने के बाद अगर उसको ताजमहल नजर नहीं आया तो कितना अफसोस होगा। उसी तरह अल्लाह का वली जब वहाँ से बल्ख से 23 साल में मक्का पहुँचा, मक्का पहुँचने के बाद वहाँ पर खाना काबा नजर नहीं आता। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ किया, मौला 23 साल में कदम कदम पे नमाजें पढ़ के आया हूँ, दिल में तमन्नाएं ले के आया हूँ। दिल में तमन्ना थी कि तेरा घर देखूंगा, तमन्ना थी हजरे अस्वद को चूमूंगा, मकाम इब्राहिम का बोसा लूंगा, गिलाफे काबा पकड़ कर अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। ऐ परवरदिगार, मैं तेरे शहर में आया हूँ लेकिन तेरा घर मौजूद नहीं है। ऐ अल्लाह, तेरा खाना काबा कहाँ चला गया है? आवाज आती है, ऐ मेरे वली, पूरी दुनिया काबा देखने आती है। आज काबा मेरा मकबूल बंदा गौसे आजम के रोजे की ज़ियारत करने मक्का से बगदाद गया हुआ है। आला हजरत पुकार उठते हैं कि सारे अख्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम साहिब किबला, सरजमीने पाछू रसिया। नारे तकबीर।
ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، اگر چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔